Hello everyone. Today I am here with Anushka Yadav, who emerged as one of the topper of our school. She scored 90 plus marks in more than 3 subjects and 98 in computer science. Although so many students have tried to achieve this percentage, but that does in no way diminish the value of hard work Anushka put in her studies. She has tried her hard to achieve that success and that percentage. So let's meet Anushka Yadav and know her experience. Anushka, first of all, hearty congratulations for your achievement in your board examinations. I know that you have got a very balance at your home, at your school. Your parents were very much supportive. They provide you a support during your education. But what method did you adopt in your examination? Ma'am, I adopted only the first thing ki whatever I was studied that should be understandable. There is no plus point कि हम पढ़ते जा रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा है. So the first thing whatever we study it should be clear in our mind. You have scored 90 plus in almost 3 subjects and you have scored highest marks in which subject? Ma'am, I have scored in computers that is 98 out of 100. How did you prepare for your board examination? What strategies you have followed during your board exams? During board exams, I completely skipped the reduced part, and the most important thing that was the first on my priority list at the unsolved papers, which were very helpful. And on those papers also, I left the reduced part, and in the computers, I followed the notes which were given by sir in his school, and same in maths also. So I did not study the unnecessary part which was not coming in the examination. That's it. During the COVID phase, students got so disrupted due to the closing of schools. But Dr. L.P. Lal School managed to provide recorded videos so that students can continue their education. How was that helpful to you? Ma'am, that was very helpful since the schools were completely closed, and due to Jankari videos, we were able to watch those videos at any time of the day. It was not compulsory कि जिस time video आ रहा है उस time watch करना है. We were able to watch any time, so that was very helpful also. And there was a comment section where we can ask some queries as well. Okay. And how was SPDP proven beneficial to you? SPDP has played a major role in my life. Recently in my new school there is a program on Saturday, and there also I'm going to anchoring. So it's a plus point for me. For that I would not have to prepare a lot for, because I'm already prepared for it. So yeah, it is very plus point for me, and I have not a single fear in speaking anyone else. Manager ma'am has always supported you. She always pushed you up that you should go and do anchoring. Do you have any kind of जो आपको याद आता हो कि मैम ने आपको सपोर्ट किया वहाँ पर? Yes, ma'am. Yesterday also she called me and she told me that whenever I face any problem, I can come to school and ask her. Even the manager sir as well. Even he has motivated me to see the vision of an IAS officer. Because as a student, ये शायद बहुत बड़ी बात है. तो manager sir ने हमेशा मतलब उन्होंने ही हमेशा speeches वगैरह में बताया what is IAS, what is UPSC, what is cabinet secretary and all. So उसके लिए तो obviously manager sir has helped a lot. How important was the revision part? रिविजन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सिलेबस तो कम नहीं था, उसको एक साथ पढ़ना फिर देना इज़ नॉट वेरी ईजी. सो एट वी हैव फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 days फॉर टेस्ट. सो फॉर 3 days वी शुड स्टडी एंड द लास्ट 1 day शुड ओनली फॉर द रिविजन. उस दिन कुछ पढ़ना नहीं है, बस रिविजन ही करना है. तो शायद. फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन अ डे? मैम आवर्स तो कभी काउंट किए नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ गया था तो बस वही जो थोड़ा बहुत टाइम खाना पीना निकलता था, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में ही. तो अप्रॉक्स 12 to 13 hours in a single day when it was examination. Did you prefer coaching or self-study or through the notes of the school?
Ma'am, I prepared myself. I did not take any coaching. I prepared through school notes, through YouTube channels as well. Self-study only. What role did your school play in preparation of your board examination? My school has played a very vital role. Since the starting to the board examination, only school has supported me, the teachers has supported me. And even in the home also, I was able to ask some questions to the teachers, even in the during the COVID times as well. So school has played a very important role. How supportive were your parents throughout your education? No doubtly parents support a lot at each and every step, whether we are in a good path or bad path, they always support. Even my mummy also, they support very much. And I still remember when there was my first exam of Hindi, I was studying I guess at 3 a.m. and mummy was coming to see me what I am doing, whether I am studying or not. So she has helped me a lot. What was your frame of mind when you were writing your exams? Were you nervous or very much confident? I'm a little bit nervous as well because before that board examination I gave 2 pre-boards. So ज़्यादा nervous तो नहीं थी, but ये board exam था, थोड़ा environment change था, teachers change थे, और the first thing was in my mind that I would not write any unnecessary thing because there was time limit. So unnecessary कुछ नहीं लिखा, जो question में पूछा गया था बस वही लिखा. How helpful was e-Jankari portal during your COVID time? Ma'am, online classes were conducted on e-Jankari portal only, and also on the e-Jankari we were able to see our holiday homework as well regarding our attendance or marks as well. So this was very helpful. Would you like to say something to motivate those girls who can't study? I would just like to say that do hard work, because it's a saying, hard work is the key to success. So never stop yourself from doing hard work. There are so many things जो कभी नहीं आती हैं तो उसको सीख कर ही हम कर सकते हैं. So never give up and always give your best. Hello ma'am. First of all, hearty congratulations for the success of your daughter in board examination. Please share your experience कि आपने किस तरह से एफ़र्ट डाली उसकी पढ़ाई के लिए, कितना टाइम आप लोगों ने उसको पढ़ाई के लिए दिया, आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा अनुष्का की पढ़ाई के साथ? मैम पढ़ने में तो उसका बचपन से ही बहुत मन लगता था और पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करती है मैम. तो मतलब उसके साथ मैम हम लोग भी पूरा समय देते हैं कि अच्छा माहौल बनाते हैं कि वो पढ़ लिख सके, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो मैम. ठीक है, जो उसकी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कापी किताब पेन वगैरह हर चीज़ उसको समय पे मैम देते हैं हम लोग. भले अपने को कोई परेशानी उठा लें उसको मौके पे ही देते हैं मैम, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई के लेके. हाउ डिड यू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट? आपने वो माहौल कैसे क्रिएट किया? रात में कैसे वो पढ़ती थी तो आपने भी उसके साथ दिया होगा, उसके साथ बैठकर उसी तरह से पढ़ाई करना, तो किस हद तक आपके लिए ये मुश्किल रहा और आपने किस तरह से इसे निभाया? नहीं मैम, खैर हम तो ज़्यादा समय तो नहीं बैठ पाते थे क्योंकि काम भी करना पड़ता था मैम. तो ये 1 आध घंटे तो बैठ के देखते थे क्या पढ़ रही, क्या लिख रही हो, क्या कर रही हो. उसके बाद मैं पढ़ती थी, बीच में जाते देख के चले आते थे कि पढ़ रही है कि मोबाइल चला रही है, क्या कर रही है. आजकल तो ऐसा भी होता है ना मैम कि बच्चे पढ़ाई को लेकर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और फिर वो पढ़ाई ना करके अपना उसमें गेम खेलते हैं या कुछ करते हैं मैम जी. तो वही मैम देख लेते थे बीच में उठ के, और फिर पढ़ाई जब जाते थे मैं पढ़ती ही मिलती थी हमको. वो उसके पहले जब ना होते तो कुछ भी करती हूँ, लेकिन जैसे जाते थे एंट्री होती थी मेरी वो पढ़ते ही मिलती थी मैम. नहीं पढ़ती तो थी जी. ड्यूरिंग कोविड फेज़ मैंने देखा कि बच्चों की अटेंडेंस बहुत रेगुलर रही, बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, आप लोगों ने टाइमली हर चीज़ बच्चों को सपोर्ट किया. तो वो जो कोविड फेज़ का एक पीरियड था जिसमें हमने ई-जानकारी के थ्रू बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवाए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस वक्त आपको क्या एफ़र्ट डालना पड़ा बच्चों की पढ़ाई के लिए? मैम ये जानकारी से जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ, क्योंकि जानकारी मैम हर फ़ोन तो एक ही था घर पे मैम. तो बच्चे 3 पढ़ने वाले थे मैम, तो हर समय तो नहीं फ़ोन रहता था ना सबके पास. तो मैम वीडियो पढ़ते थे, वो बारी बारी से अपना पढ़ लेती थी. जैसे बारी बारी से पहले अनुष्का पढ़ ली, फिर आरुषि पढ़ ली, फिर अदिति पढ़ ली. तो उससे जो बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हुआ मैम. सर, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? अनुष्का ने इतना अच्छे स्कोर किया है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, शी इज़ द सेकेंड टॉप हाईएस्ट स्कोरर ऑफ आवर स्कूल. सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या तो सुबह निकल जाते हैं तो शाम ही को आते हैं घर वापस, और बच्चे तो स्कूल जाते हैं तो वही बड़े सर और बड़ी मैम ही पढ़ाते लिखाते हैं, तो उन्हीं पर सारा डिफेक्ट है ही.
तो आपका तो है कि आप सुबह जॉब की वजह से सुबह निकल जाते हैं और शाम के वक्त ही आते हैं, तो उस वक्त भी आप बच्चों से जाकर मिलते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ा, कुछ पढ़ाई की सुबह की? नहीं पूछते तो बताती हैं कि बड़े मैम ने पढ़ाया, ये सर ने पढ़ाया, यही बताती कि स्कूल में पढ़ाई हुई। फिर बाद में उनकी मम्मी देख रेख कर लेती है थोड़ा बहुत। हम तो बाहर ही रहते, हम तो देख ही नहीं पाते ना। नहीं, पेरेंट्स जो हैं वो इसीलिए बाहर ही जाते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें, और यही आपका भी मोटिव होगा कि अनुष्का को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। एंड मैं भी देखती हूँ कि मैम ही पूरी तरह से देखती हैं, लुक आफ्टर करती हैं बच्चों को। एन इनिशिएटिव वाज टेकन बाय Dr. Devashish sir that he started SPDP program, Student Personality Development Program. ये अनुष्का की पर्सनालिटी को डेवलप करने में कितना बेनिफिशियल रहा? मैम बहुत ज़्यादा ही रहा। उसको जो है मतलब बोलने की जो मतलब क्षमता मिली मैम, वो मतलब स्कूल से ही मिली, क्योंकि वो पहले बहुत डरती थी, स्कूल जाने में भी रोती थी मैम। उसको मतलब टीचरों ने मतलब बड़ी मैम ने, सर ने बहुत ही समझाया। 1 साल तो मैम वो रोती ही रही जब न्यू एडमिशन कराया इसका स्कूल ना जाने के लिए मैम। फिर उसके बाद समझते समझते मैम घर थोड़ा मतलब समझने लगी कि मतलब हमको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। समझाने पे समझ गई, सर लोग के, आप लोग के मैम, और पेरेंट्स के भी कहने पे मैम। और SPDP मैम मतलब एक अच्छी, बहुत ही अच्छा एक वो है जो बच्चों को मतलब मन से डर निकाल देता है एकदम बोलने का। मैम हम लोग भी नहीं बोल पाएंगे, अभी 10 लोग के सामने बोलने कहा जाए तो थोड़ा डर रहता है कि क्या बोलें, ठीक है मैम। तो मतलब उसमें ये सब नहीं है मैम, वो निश्चिंत होकर बोल लेती है पूरा। जहाँ भी उसको खड़ा कर दो, कोई भी बड़वा दे दो, उसको मतलब बराबर बोल लेगी मैम। उसके अंदर कोई डर नहीं रह गया। इसी इनिशिएटिव, इसी सोच के साथ सर ने स्टार्ट किया था SPDP प्रोग्राम कि बच्चों के अंदर से वो डर निकल जाए। एंड वी कैन सी द एग्जाम्पल, द मोटिवेशन इन अनुष्का इटसेल्फ। सो जब फॉर द फर्स्ट टाइम आपने अनुष्का को माइक पे कंपेयरिंग करते हुए, पूरा प्रोग्राम होस्ट करते हुए देखा, हाउ वाज दैट फीलिंग? नहीं तो मैम हमको तो अंदर से रोना आ रहा था मैम, सच पूछिए, खुशी के मारे कि हमारी बच्ची ने इतना अच्छा मतलब देखो फर्स्ट बार इतना अच्छा बोला। मैम, अनुष्का हैज़ बीन स्टडीइंग इन स्कूल सिंस नर्सरी, राइट? तो नर्सरी से लेके अब तक का जो सफ़र रहा स्कूल के साथ, वो आपका कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा। स्कूल इज़ लाइक अ सेकेंड होम टू अनुष्का। एक तरह से उसका एक सेकेंड होम है, वो वहाँ पर बचपन से पढ़ रही है वहाँ पर, तो एक बहुत ही अच्छा उसकी एक याद है वहाँ से। बहुत अच्छी थी पढ़ाई में ऑब्वियसली। सो थैंक यू मैम।